recurrence relation and generating functions. Recurrence relation we will define for the sequence. You know about sequence. We can write a sequence Sn in this way, or uh, S1, S2, and like this one. So this may be Sn or Sn or An or Un. This is nth term. This is also nth term. Nth term of the sequence. These are the terms of the sequence. These are the simple notations in which we can denote a sequence. Sn is an equation or is as terms of Sn that relates the terms of Sn that relates Sn. इसको मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे, ये ध्यान रखना, इसको इस तरह नहीं लिखेंगे. That relates Sn in terms of one or more of the previous terms. विजुलाइज हो रहा है? विजुलाइज हो रहा है? यस सर. अटेंडेंस का काम कौन देखेंगे आज? सर चैट बॉक्स में हम कमेंट कर देंगे, आप देख लीजिएगा. नहीं, अटेंडेंस कौन भेजेंगे? इश्किन सियर. स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दें, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल पाओ, ग्रुप में डाल देना, हमको भेज पाओ, हमको भेज देना. ठीक है. ध्यान रखना. आप नाम बताना जरा, आवाज तो सुनी लग रही है तुम्हारी. अभिजीत नाम है. अभिजीत, हाँ. तो इस सीक्वेंस को द वैल्यूज जो हमारी यहाँ से लेंगे, सीक्वेंस को S0 कर सकते हैं, S1 से स्टार्ट कर लो, S0, S1, these are the terms of the sequence. The values these one, S0, S1 and many more up to, we can say, Sn minus 1 goes up to Sn minus, are explicitly given वैल्यूज. ये वैल्यूज गिवन होती हैं और ये जो वैल्यू होंगी S0, S1 अप टू Sn minus 1, these are known as boundary conditions or boundary values or initial values or initial conditions.
a sequence can be defined by giving a general formula for its nth term, or by writing few of its terms, or by writing an alternative approach is to write the sequence by finding relationship among its terms ओके सच एंड ये जो रिलेशनशिप है सच अ रिलेशनशिप is called a recurrence relation और डिफरेंस इक्वेशन आल्सो। ठीक है, जो इस सीक्वेंस के अंदर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा उसको रिकरेंस रिलेशन, उसके टर्म्स के बीच में जो रिलेशन होगा रिकरेंस रिलेशन, और दिस रिकरेंस रिलेशन आल्सो नोन एज डिफरेंस इक्वेशन, बट वी विल generally known this relationship by recurrence name. Okay, हो गया यहां तक? यहां तक हो गया? हो गया पूरा। Next we have an example. Suppose the sequence s equals to 2 to the power 1, 2 square, 2 cube up to 2 to the power n minus 1 up to 2 to the power n. This is a sequence and we will write terms of the sequence in this middle bracket or another symbol. Nth term of sequence, nth term of the sequence s equals to Sn, where Sn, or generally is we can write here we have considered this one sequence, so Sn equals to 2 to the power n. इसके लिए रिकरेंस रिलेशन Sn equals to 2 to the power this is 2 Sn minus 1 for all n greater than equals to 2. This is appropriate
रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन एंड S1 इक्वल्स टू 2। ये क्लियर हो गया सभी को या और एक्सप्लेन करें इसको? दिस विल सर एक बार फिर से बता दो। दिस विल बी द रिकरेंस रिलेशन। जैसे हमारे पास S1, दिस इज द S1, दिस इज S2, दिस इज S3, दिस इज Sn। यहां तक क्लियर है ना? ओके S1 equals to 2, S2 we can write 2S1, S3 equals to 2 square S1, ओके। और यस सर। 2S2 क्लियर है नहीं है? समझ आ गया? यस सर। S4 को क्या लिख सकते हो आप? 2 to the power 3S3 लिख सकते हैं जनरली? नहीं, नॉट 3, 4 2S3 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, चेक करो जरा। अरे नहीं यार सर। लिख सकते हो ना S4 को S2S3, तो S5 को क्या लिख सकते हो? 2S4 हो गया ना? हर एक में 2 तो बढ़ता जा रहा है। यस सर। ट्वाइस, इसको ट्वाइस कर दो ये मिल जाएगा, इसको ट्वाइस कर दो वो मिल जाएगा, उसको ट्वाइस कर दो। तो अगर nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो ट्वाइस ऑफ प्रीवियस टर्म, ओके। दिस रिलेशन, recurrence relation, and these are the solutions of recurrence relation। इस तरह से कर सकते हैं। Here for finding solutions we will put n equals to 1 2 3, इसमें रख लो आप। Otherwise we can obtain if n equals to 1 2 3 then S1 equals to 2S0, ठीक है। S2 equals to 2S1, अगर इसमें S2S1 यहां से भी दिख रहे हैं आपको ये, अदरवाइज आप इससे देख सकते हो। S3 इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3, तो 2S2, ओके। क्लियर हो गया ना? यस सर। तो ये जो रिकरेंस रिलेशन है इसको बोलेंगे nth टर्म में जो रिलेशन है जनरल रिलेशन, that is recurrence relation, and these are the solutions of recurrence relation we can establish from here or we can establish from here। both the situations are clear to all? क्लियर हो गया? यस सर। तो इसके जनरल टर्म में जो रिलेशनशिप आएगा उसको रिकरेंस रिलेशन, और इस तरह से इसको एनालाइज करना होगा। इतनी सी बात है रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन में इसके कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप कर सकते हो। एक और एग्जांपल से इसको कर लो क्लियर। द रिकरेंस रिलेशन of the sequence S is given here, that is 5 8 11 14, इसको जरा इसका रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आप देख सकते हैं S1 कह लो, S0 कह दो। अगर इसको S0 कह देते हैं, इसको कह सकते हैं S1, ये कह दो S2, ये S3, तो आपको क्या इसमें कंडीशन दिख रही है? दिस 1 + 3, दिस 1 + 3, दिस 1 + 3, ये आ रहा है ना? यस सर।
जैसे कि आप जानते हो +3 कर दो, +3 कर दो, ये तो आपने रीजनिंग में किया होगा, वही चीज़ यहाँ पर है, जनरल रिलेशन बनाना है। तो इसका रिकरेंस रिलेशन आ जाएगा Sn इक्वल्स टू Sn, या तो उसमें माइनस कर दो, इसमें से दो तरीके, Sn -1 + 3 फॉर ऑल n greater than equals to 2 with initial condition with, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, with initial condition S0 कह लो, S0 इक्वल्स टू 5, ये आपको दे रखी है। अगर इनिशियल कंडीशन S0 कहें या S1 कहें, जो भी कहना है, S0 से स्टार्ट कर लो, 1 से, तो इनिशियल कंडीशन S0 इक्वल्स टू 5। कोई प्रॉब्लम? लेकिन इसमें S0 ना लेके S1 ले लो, S1 ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। इनिशियल कंडीशन S1 इक्वल्स टू 5। एक और सीक्वेंस देख लो, द recurrence relation of Fibonacci sequence of numbers s equals to 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, इसके लिए जो रिकरेंस रिलेशन होता है फिबोनाची सीक्वेंस के लिए, दैट इज Sn इक्वल्स टू Sn -1 प्लस Sn -2 फॉर, यहाँ पर जो कंडीशन होती है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, बिकॉज फर्स्ट टू टर्म्स in this sequence will be same. Initial conditions, so we can say for Fibonacci sequence, initial conditions are, visualize हो रहा है, यस सर सही है। initial conditions are, इसकी तो हो गई कंडीशन S1 equals to S2 equals to 1. These are initial conditions. If we will put these values in this recurrence relation, then we will obtain this Fibonacci sequence. ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब इसमें कोई भी पुटअप करो आप, S1, S2, S3 आप ऑब्टेन कर सकते हैं। करेंगे इसको जरा सिंप्लीफाई करो, इसको जरा सिंप्लीफाई। S3 इक्वल्स टू S2, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो। S3 यानी S3 मतलब S1, S2, S3, S3 इक्वल्स टू S2 प्लस S1, so S2 is S1 1 plus 1 equals to 2, so S3 is 2, here S3 is 2, it is clear? Let us find S4 is 3, so let us verify S4 is from this S3 plus S2, so S3 is 2 plus 2 1, that is 3, so S4 is 3, this is 1 2 3 4, S4 is 3, it is verified. So Fibonacci sequence के लिए recurrence relation will be this one. Okay, ठीक है ना? यस यस सर। तो रिकरेंस रिलेशन उम्मीद है कुछ हद तक आप लोगों को क्लियर हो गया, किस तरह से हमें फाइंड आउट करना है, किस तरह से उनके सॉल्यूशंस स्टेप जनरेट करने हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताएं जरा आप लोग। क्लियर है।
अब कर लेते हैं, नोट कर लें थोड़ा सा और फिर उसके बाद वर्क करेंगे। ये रिकरेंस रिलेशन that defines a sequence can be directly converted to an algorithm to compute the sequence. ओके, यहां से कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस कर लेना। फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स, फाइंड फर्स्ट, अगर इसमें 4 लिखा है, फ्यू लिख लो, 4 कर लो या 5 कर लो। 5 फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द रिकरेंस रिलेशन पहला क्वेश्चन यहां से है, ए के इक्वल्स टू ट्वाइस ए के माइनस 1 प्लस के। क्यों भाई, वो सेंट जॉन्स वाला लड़का आया है, उसका नाम भूल गए हम तो, वर्मा है कोई समथिंग। सुन पा रही हो? यस सर। सेंट जॉन्स वाले कौन है आप लोगों में? मालूम नहीं, किसी को नहीं जानते। रवि हम किसी को नहीं जानते इस ग्रुप में। नहीं, तुम्हारी क्लास तो एनए की ली थी ना आपने लास्ट सेमेस्टर में? सर हमारी क्लासेस ही नहीं होती थी। अरे यार हुई तो थी, न्यूमेरिकल मेथड्स नहीं पढ़ा था तुम लोगों ने? नो सर। मयंक वगैरह इसी में हो ना? हुआ था सर, 5th सेमेस्टर में हुआ था क्लास। अब तुम्हारा कौन सा सेमेस्टर है ये एमसीए का है सर, एमसीए 3rd सेमेस्टर। एमसीए में हम लोगों ने लिया है ना एडमिशन। फिर नहीं, एक मिनट, तुम लोगों का बीसीए का था उस वक्त? यस सर, बीसीए का शायद आप ही लिए थे, बीसीए 5th सेमेस्टर का, जनवरी में पिछले साल। हाँ हाँ, जनवरी में वो न्यूमेरिकल मेथड था उसमें। यस सर। तो आप लोगों ने लिया तो था, तो वो एमसीए नहीं था तुम्हारा? नहीं सर, 5th सेमेस्टर में एमसीए, रुको, एमसीए का एमसीए का नया बैच है सर। 3rd सेमेस्टर में जो बीसीए वाले बच्चे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इग्नू से करते हैं, तो उनका 1st सेमेस्टर मतलब 3rd सेमेस्टर में प्रमोट डायरेक्टली हो जाते हैं। हाँ तो हाँ, वाला बैच तुम्हारा? यस सर। अच्छा, डायरेक्टली प्रमोट हुए हो ना? यस सर, 3rd सेमेस्टर। तो मतलब एमसीए 3rd सेमेस्टर में डायरेक्टली प्रमोट हो? यस सर। हाँ, तो लास्ट सेमेस्टर वही तो मुझे याद आ रहा है ना, तुम लोगों की क्लास हुई है हमारे साथ, है ना, न्यूमेरिकल मेथड्स? यस सर, हुआ था 5th सेमेस्टर का जो मैथ है। अब शायद न्यूमेरिकल, इसमें एमसीए में मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल मेथड उसमें भी हुआ करते थे, लेकिन वो खत्म कर दिया है क्या? का 5th सेमेस्टर जो है कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक, वो आपने लिया था। बाकी तो फिर मुझे अभी नहीं मालूम। अच्छा अच्छा। Then find the first 5 terms of the recurrence relation ak equals to 2 ak minus 1 plus k is k क्या है? इंटीजर। for
हाँ, एक मिनट, अटेंडेंस का कौन देखने वाले हैं आप बताओ जरा नाम। पूरा अभिजीत कुमार। अभिजीत ध्यान से भेज देना इसको। सभी लोग चैट बॉक्स में अपना नेम और इन्फॉर्मेशन नंबर सेट कर। क्या? अरे इन लोगों से बोल रहा हूँ, ये चैट बॉक्स में लोग सेंड करते हैं, मैं आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ, नंबर आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लो और उसको सेंड कर देना ध्यान से। ओके, फाइंड द फर्स्ट 5 terms of the recurrence relation ak equals to 2ak minus 1 k for all integer k greater than equals to 2। क्यों 2? क्योंकि यहां पर एक इनिशियल कंडीशन दे रखी है k1 equals to 1, यानी k1 नॉट k1, दिस इज a1, दिस इज इनिशियल कंडीशन जैसे अभी हम लोगों ने। लेकिन k इक्वल्स टू ग्रेटर देन 2 के लिए आप इसको फाइंड आउट करें तो इसको सॉल्यूशन स्टेप यही होगा, देख सकते हो a1 इक्वल्स टू 1। फर्स्ट टर्म तो आपको आधा आंसर तो दे रखा है इन्होंने, 1/5 आंसर तो दे रखा है। ओके, आपको क्या करना है, थोड़ा सा ही तो वर्क करना है। a2 यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, a2 के लिए क्या होगा k इक्वल्स टू 2, सो 2a1 प्लस प्लस बताओ 2। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। a3 को फाइंड आउट करें तो 2a2 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 11। a4 इक्वल्स टू 2a3 प्लस 2 3 4 इक्वल्स टू 2a3। what is the a3? So this is one term, second, third, fourth. Similarly, a5 equals to 2a4 plus 5, 2 3 4 5 equals to 2 into 26 plus 5 equals to 57। हो गया ना? क्लियर हो गया? यस सर। समझ आ गया रिकरेंस रिलेशन कैसे हमको वर्क करना है? ओके, यस सर। हटा दिया जाए, किसी को कोई डाउट? नहीं सर, हटा दिए। इसका कुछ पार्ट्स हैं उनको ट्राई करना। इसको लिख लो, फाइंड द रिकरेंस रिलेशन फॉर ए के इक्वल्स टू के ए के माइनस 1 होल स्क्वायर फॉर ऑल इंटीजर के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड ए नोट यहाँ पर दे रखा है 1। सो इनिशियल कंडीशन यहाँ पर ए नोट लेके वर्क कर ले, a1 दे रखा है तो 1 लेके वर्क कर ले इस तरह से। देन here it is condition k greater than equals to 1, then we will put k equals to 1. So a node is given, so we will obtain according to this condition। निकाल लेंगे इसको। इसकी फाइंड यहाँ नोट कर लो,
first four terms of recurrence relation. ओके, नोट कर लिया सभी ने? कर लेंगे इसको? लीनियर recurrence relation with constant coefficient a linear recurrence relation with constant coefficient is of the form C naught an plus C1 an minus 1 प्लस, या दिख रहा है क्या? प्लस कर लो, प्लस सी के ए एन माइनस के इक्वल्स टू एफ ऑफ एन कह सकते हैं. हियर these all ci's are constant. The order of relation is k. Because an can be expressed in terms of previous k terms of the sequence. ठीक है? Yes, sir. Now if this Fn RHS side Fn is identically 0, then relation, or we can say recurrence or relation, recurrence or relation is known as homogeneous recurrence relation. Here it is non-homogeneous recurrence relation. Example, the recurrence, इसको हटा दे, जरा ऊपर लिख लेते हैं. सर हटा दीजिए. For example, we will consider here the
recurrence relation an minus 1 equals to 2. Is not a linear homogeneous relation with constant coefficient. ठीक है, यहां पर 2 is as RHS is not equals to 0. So these are the recurrence relations. We have some method for finding solution of recurrence relations. इसका कोई selected method नहीं है, लेकिन इसको आप ट्राई कर सकते हैं. कुछ मेथड अगर आपकी उसमें दे रखी है तो इटरेशन मेथड, फर्स्ट मेथड, मेथड्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन, इटरेशन मेथड जैसा कि आपने किया हुआ है पहले, इटरेट करना, कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड, characteristic root method, and next we have generating functions, generating function method. In this way we will obtain the solution of recurrence relations. इनको ट्राई करना, इसमें से कोई मेथड आपके पास अवेलेबल है, किसी से करा है या नहीं, इसको जरा चेक करें. कोई मेथड अप्लाई किया है या डायरेक्ट मेथड यूज किया हुआ है. एनीवे इसको ट्राई कर लेना. डायरेक्ट उसको जनरल सीक्वेंस से रिलेट करके किया हुआ है. तो इनमें से अगर आपके पास कोई मेथड इसमें अवेलेबल हो और कुछ भी अगर डाउट आए तो आप बताना, इसको रिलेशन को सॉल्व करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है.